برمنگھم سٹی کونسل ہال کے باہر کشمیر مارچ، فضا مودی سرکار اور بھارتی فوج کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرے میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ، کونسلرز، خواتین اور بچے شریک، کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ واشنگٹن کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان سفارتخانے کے باہر اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ کشمیر میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں، سفیر پاکستان اسد مجید خان کا خطاب۔ جرمنی، پرتگال، ہالینڈ اور سعودی عرب میں کشمیر کے حوالے سے تقاریب۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ مودی کرفیو لگا کر کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ گوادر اور سی پیک پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ گوادر میں معروف پراپرٹی ڈیولپر اوشین مرینا گوادر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی لندن میں 92 نیوز کے ساتھ خصوصی نشست۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ عالمی شہرت یافتہ روحانی شخصیت پروفیسر رفیق اختر 7 ستمبر کو برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ لندن میں تصوف اور صوفی ازم کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خصوصی خطاب کریں گے۔ تقریب کے منتظمین کی پریس کانفرنس۔ پارلیمنٹ معطل کیے جانے پر برطانوی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر جمہوری مشورہ دینے پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو کڑی تنقید کا سامنا۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی شہریوں کا احتجاج۔ کوالالمپور میں ملائیشیا کے 62ویں یوم آزادی کی خوبصورت تقریب۔ پاکستانی ہیڈ آف چانسری شہزاد حسین کی خصوصی شرکت۔ فضا پاکستان اور ملائیشیا کے قومی ترانوں سے گونج اٹھی۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ولاگ بنانے والے پاکستانیوں نے دبئی میں میدان مار لیا۔ یوتھ ولاگ ایوارڈ میں دنیا بھر کے ولاگر شریک۔ کئی پاکستانی خواتین ولاگرز ایوارڈ اپنے نام کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم بلیٹن۔ میرا نام دانش حسین اور میں ہوں ثنا عثمان۔ برٹش کشمیریوں کی جانب سے برمنگھم سٹی کونسل ہال کے باہر کشمیر مارچ کے نام سے احتجاج کیا گیا، جس میں برطانوی ممبران آف پارلیمنٹ، کونسلرز، دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین حضرات نے شرکت کی۔ اور شرکاء نے بھارتی کونسلز کے باہر مودی سرکار اور بھارتی فوج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔ بھارت مخالف کشمیر مارچ کا اہتمام برمنگھم سٹی کونسل کے کونسلر اور برٹش کشمیریوں کی جانب سے کیا گیا۔ مارچ ٹاؤن ہال سے شروع ہوا۔ شرکاء نے تقریباً 2 میل کا سفر پیدل طے کیا۔ خواتین اور بچوں نے پلے کارڈز اور کشمیری جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ برمنگھم سٹی سینٹر کی گلیاں، بازار فری کشمیر اور مودی ٹیررسٹ کے نعروں سے گونجتی رہیں۔ مارچ انڈین قونصلیٹ کے سامنے اختتام پذیر ہوا، جس دوران پولیس کی بھاری نفری قونصلیٹ کے باہر موجود تھی۔ اس احتجاجی مارچ سے ایم پی شبانہ محمود، ایم پی لیمبرن، ایم پی جیک ڈرمی، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ ٹام واٹسن، فل بینن، کونسلر این وارڈ، کونسلر وسیم ظفر، راجہ امجد، فہیم کیانی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر ظلم اور بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ممبران آف برطانوی پارلیمنٹ نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ وہ اگلے ہفتے اس مسئلے کو برطانوی پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جا سکے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی کے ایم پیز نے کہا کہ برطانوی حکومت پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی مدد کی جائے۔ سکھ کمیونٹی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سیاسی سفارتی کوششوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی بنی ہوئی اشیاء اور مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے بھارتی معیشت
मईशत पर कारी ज़रब लगानी चाहिए। इस मौके पर MP शबाना महमूद, MP लैम्बर्न, MP जैक डर्मी, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फुल बेनन, टॉम वॉटसन, काउंसलर एन वार्ड और सिख रहनुमाओं ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मोदी सरकार के जालिमाना और गासिबाना इक़दामात की भरपूर मजम्मत की। I think, of course, the situation in Kashmir is an absolute international outrage, and the Indian occupation of Kashmir, and there's no doubting that that's exactly the situation we've got. The communications blockade is deeply worrying. I'm particularly concerned about food and medicine shortages and potential human rights abuses that might be occurring. It is vitally important that the international community puts massive pressure on India. And I'm the cabinet member for Homes and Neighbourhoods in Birmingham. It was so important for me to come out today in solidarity to stand by side with my Kashmiri community. My friends are from Kashmiri community. It's awful what's happening, and we have to think of the families, the children, and those that are out of communication with their loved ones. We must fight for freedom of communication. We need to make sure that people are okay, and we have to send a strong message out as a global community that this is not on. Conservative group here in Birmingham. I'm here at the Kashmiri March in Birmingham to express our concerns about the human rights violations being in Kashmir and to express our support for a free Kashmir. This is a very strong message to the Indian government. What we're seeing here is a very, very angry crowd here in Birmingham of Kashmiris, and looking at the news that's finally come out of Indian-controlled Kashmir last night, we've finally broken through the cordon and got some news out with the BBC. I don't know if those saw the report last night. Now, those of us in the European Parliament are not being idle. Two of my colleagues, Shafak Mohammed, who was born in Mirpur, and Irina von Wiese have been to Kashmir earlier this month on a fact-finding mission. They've also spoken to the Pakistani government in Islamabad. I'm due to be going out in the near future. It's Tom Watson, I'm a West Bromwich MP. I'm here today because I've seen the fear on the faces of my constituents and my friends across the West Midlands region. The last 25 days have been traumatic for the Kashmiri community of the West Midlands and the United Kingdom. When people can't communicate with their loved ones, when they're worried about medical supplies, when they're worried about food and water, basic provisions that we take for granted in this country. So we're here from across communities, across our city, to unite with the rest of our country, to send a very clear message to Mr. Modi. You cannot get away with what you are trying to do in Kashmir. We will not let you get away with what you are trying to do in Kashmir. This is a clear breach now of the similar agreement signed in the 1970s. India and sometimes Pakistan in the past have tried to pretend this is a bilateral issue. Both have now admitted in their different ways this is no longer a bilateral issue. This is now a multilateral issue where the world has to step up and make sure two nuclear powers do not go to war, and to make sure that justice is done for the people of Kashmir. गुज़िश्ता 25 रोज से कश्मीर को खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। 5 अगस्त को जो ऐलान किया गया धारा 370 को तोड़ने का, 35A को तोड़ने का, ये जो मुताहिदा हुआ था जम्मू कश्मीर के 1947 में जो राजा हरी सिंह थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन जो गवर्नर वाइसरॉय गए थे माउंट बैटन, उन्होंने कहा था कि या तो आपको इंडिया के साथ जाना पड़ेगा या पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने उस वक्त जो मुताहिदा इकरारनामा किया था वो तोड़ दिया गया है। सिखों के साथ तो जो समझौता किया गया था वो तो वर्बल था, लेकिन ये रिटन समझौता तोड़ दिया गया है। जो हो रहा है कश्मीर के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इसको स्टॉप करना चाहिए। असल में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनको कहें कि ये स्टॉप करें, लेकिन वो लोग आंखें बंद करके बैठे हैं। इस दौरान मार्च में मौजूद शुरका का कहना था कि कश्मीरी माओ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं। मुसलमानों के 50 से ज्यादा ममालिक भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। एहतजाज करने वालों का यह कहना है कि जब तक मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म जबर की ये तारीख रातें खत्म नहीं होती, उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शकील जावेद के साथ आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी ने गवादर पोर्ट को पाकिस्तान का माशी गेटवे करार देते हुए वतन अजीज की माशी खिदमत करने का फैसला कर लिया। गवादर के मारूफ प्रॉपर्टी डेवलपर्स ओशन मरीना गवादर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूसुफ जमील, आमिर जमील और सुलेमान अहमद का कहना है कि गवादर सी पैक पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। इस ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बात करते उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए।
Very good question. We are very different to a lot of the developers here. The main point that differentiates us from the rest of the market is the fact that we hold a Grade A NOC from the Gwadar Development Authority. What does that mean, A grade license? Again, very good question. The Grade A NOC signifies that as a developer we have to hand over plots within 3 years by 2021. Right. So this makes it very different to a lot of the market players in Gwadar, the majority of whom are Grade B. We are the Gwadar Development Authority are giving development priority to all Grade A projects. So all the infrastructure, everything you'd expect from the roads, the fibre optic cabling, the lighting, etc. All of that has to be developed by the Gwadar Development Authority within 3 years, and then the developer themselves, Sadiq Sons, within the master plan, they also have to finish their development handover plots within 3 years. 3 سال کے اندر پوزیشن مل جائے گی. 2021 اب تو 2 سال رہ گئے بیسکلی. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یو کے میں ہم صرف ہم ہے اوشن مرین گوادر جو گریڈ اے این او سی ہے. گریڈ بی کافی زیادہ آگے ہے مارکیٹ پہ, بٹ وی آر دی اونلی گریڈ اے این او سی ان دا یو کے. اچھا, اگر جغرافیکلی تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں کہ یہ جو آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ جو گوادر پورٹ سے کتنی دور ہے؟ مطلب یہ 10 کلومیٹر. اٹس دا مین ریزیڈینشیل ایریا ان گوادر. ایریا کا نام ہے انکرا شمالی. So all the main residential area will be over there. So it's very, very near the airport, 5 minutes from the airport, 5 minutes from Jinnah Avenue. There's a road going directly to Marine Drive. 10 minute ke andar pahunch sakte to the beach. So it's a prime location. اس لیے ہمیں گریڈ اے این او سی ملی ہے. well الحمدللہ we haven't had to convince too many people. ہمارا جو مین ڈیولپر صدیق سنز گروپ ہے, ان کا نام it's very well known around the world, especially in Pakistan. They're in the energy sector, they're in obviously textiles, they're the top 5 denim manufacturer in the whole of Asia. And they've been doing real estate for many years. صدیق سنس ایک ایسا گروپ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی ایزیلی چیک کر سکتا ہے. آج کل تو ایزی لائف ہے, آپ صرف کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ایک بٹن دبائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میری آپ سب کو یہ میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں, انفارمیشن دے رہا ہوں کہ آپ صدیق سنس کے بارے میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ان کے. اور ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے پلس پوائنٹ ہیں, جیسے کہ میرے دوسرے کولیگس نے آپ کو بتایا. میں بھی تھوڑا سا آپ کو اس کا بتا دوں. ایک تو یہ کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ کچھ نہیں لے رہے. آپ کو جو بھی ڈیولپمنٹ چارجز دینے وہ ڈائریکٹ آپ جی ڈی اے کو دیں. میں نے یہ بھی سنا کہ کئی لوگ 10 لاکھ روپے چارج کر رہے ہیں. ہم کچھ نہیں چارج کر رہے. آج کی تاریخ میں اگر آپ جی ڈی اے کو پے کرنے جائیں تو 2 لاکھ روپے وہ لیں گے آپ سے. اور ہماری جو ہے وہ ویری ایزی انسٹالمنٹ ہے. 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے آپ کو بتایا ابھی عامر نے, وہ ہم لوگ 10,000 پاؤنڈ کا دے رہے ہیں ایزی انسٹالمنٹ پہ. اسی طرح 250 یارڈ کا وہ بھی ہم مارکیٹ سے چیپر دے رہے ہیں. اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ بیسٹ لوکیشن ہے, آپ آن لائن جا کے چیک کر سکتے ہیں. ہم سینٹرل گوادر میں ہیں. عالمی شہرت یافتہ پروفیسر رفیق اختر 7 ستمبر کو لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں تصوف اور صوفی ازم پر سیمینار سے خطاب کریں گے. عقیدت مندوں کے مسائل سن کر وظائف بھی بتائیں گے. بیورو چیف یو کے غلام حسین نابان کی رپورٹ. لندن کے علاقے ہینڈن کے مقامی ہوٹل رائل نواب میں عالمی شہرت یافتہ پروفیسر رفیق اختر کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے ایک پریس بریفنگ کا انعقاد کیا گیا, جس میں پروگرام آرگنائزر نیلم فواد نے میڈیا کو بتایا کہ 7 ستمبر کو لندن میں پروفیسر رفیق اختر روحانیت سے بھرپور تصوف اور صوفی ازم پر لیکچر دیں گے. نیلم فواد کا کہنا تھا کہ مادیت پرستی کے اس دور میں وہ اپنے بے پناہ خوبصورت رشتوں سے دور تو ہو رہے ہیں, اس لیے موجود روحانی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پروفیسر رفیق سے گزارش کی کہ وہ برطانیہ بھر سے علم و آگاہی کے متوالوں کو اپنے شگفتہ لہجے سے تصوف اور صوفیزم کے ذریعے مذہبی اور فکری ہم آہنگی کی راہ دکھانے تشریف لائیں. پریس بریفنگ میں ان کا کہنا تھا کہ پروفیسر احمد رفیق اختر تصوف کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کے چاہنے والے برطانیہ بھر میں موجود ہیں اور سیمینار کا مقصد انہیں پروفیسر صاحب سے ملنے کا موقع فراہم کرنا ہے. جی بالکل, لیکچر کے بعد بھی جو ہے وہ جن کو موقع مل سکا اور اللہ نے جن کو موقع دلوا دیا وہ ضرور کوشچن آنسر کریں گے. سر انڈیویجول لوگوں سے بھی ملیں گے. استاد احمد رؤوف اور محمد شہباز کا کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے رابطہ کر کے پروفیسر صاحب سے ملاقات کی درخواست کی ہے. لندن میں 1 to 1 تو پہلے ملاقات ہوتی رہتی, ابھی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو برمنگم میں مانچسٹر میں ریگولر لیکچر ہو رہا تھا, تو ابھی فرسٹ ٹائم ادھر لندن میں کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ لوگ ہیں. انہوں نے کہا جی ادھر کوئی پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں, تو کوشش کریں گے ادھر کر کے, اس لیے اس دفعہ ادھر کر رہے ہیں.
अब गुजारिश यही है कि लोग आएँ, प्रोफेसर साहब को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों उनके इल्म से। ऐसा अल्लाह वाला बंदा है जो लंदन में तशरीफ़ ला रहा है, हम सब यकीनन उनकी इस सोहबत से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 350-400 और मोर देन दैट जो कि तफा साहब के लेक्चर में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका मजीद कहना था कि प्रोग्राम 7 सितंबर की दोपहर 11 बजे से दोपहर 5 बजे तक जारी रहेगा और प्रोफेसर रफीक अख्तर इस दौरान अकीदतमंदों के साथ ज़ियाफत में भी शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट को तहलील करने का मशवरा बरतानवी वज़ीर आज़म के गले पड़ गया। मैनचेस्टर समेत कई शहरों में शहरियों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ एहतजाज किया, जिसमें उनकी अपनी जमात के रहनुमा भी शरीक हुए। पार्लियामेंट की तहलील का मशवरा देने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को इस कदर अवामी रद्दमल की तवक्को नहीं थी। लंदन के अलावा दीगर बरतानवी शहरों में उनके खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। आज मैनचेस्टर में शहरियों ने बोरिस जॉनसन के खिलाफ मुजाहरा किया, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहरे की खास बात यह थी कि इसमें हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के मकामी अरकान भी शरीक हुए। शहरियों ने स्टॉप द कोप के नाम से इन मुजाहरों को ब्रेक्जिट और पार्लियामेंट की मअतली तक जारी रखने का ऐलान किया है। MP अफसल खान ने इस इशू पर कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। प्राइम मिनिस्टर जॉनसन ने जो 5 हफ्तों के लिए पार्लियामेंट को बंद किया है, इसको यहाँ कू की तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने ये गलत काम किया है, क्योंकि चंद दिन पहले ही अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो अभी पार्लियामेंट ओपन होने पे जो लेजिस्लेशन लाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए जाएंगे कि वो नो डील ना कर सके। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। तो अब भी इसकी कन्वेंशन जारी है। अब जो नेक्स्ट वीक है, ये आप कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स अब होगा, जो 3 साल के कशिमकश चल रहा है कि अब नो डील की तरफ जाना है या जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। तो अगर अपोजिशन कामयाब हो गए तो लगता फिर यही है कि गवर्नमेंट का एक ही ऑप्शन होगा कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। बरतानिया भर में बोरिस जॉनसन की जानिब से बरतानवी पार्लियामेंट को मुअत्तल किए जाने पर सख्त तनकीद का सामना है। मुजाहिरों की शिद्दत में इजाफा हो गया। लंदन, लीड्स, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के अलावा स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो और डंडी में भी एहतजाज जारी है और एहतजाज में लोगों का क्या मुतालबा है, ये बताएंगे हमें ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अमान, जिस वक्त स्कॉटलैंड में ही मौजूद। जी बिल्कुल ठीक है आपने। बरतानिया भर में जो है वो मुजाहरे हो रहे हैं बोरिस जॉनसन के खिलाफ, जो उन्होंने ये 2 रोज़ कबल जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट को मुअत्तल किया था 5 हफ्ते के लिए इनिशली। उसके खिलाफ जो बड़ा ज़बरदस्त रद्दमल देखने में आ रहा है और इसमें अपोजिशन की तमाम पार्टियां शामिल हैं, कोई एक पार्टी नहीं है, बल्कि उसकी जो अपनी उनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके अंदर भी बड़ी रिजेंटमेंट है। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मुजाहरे के अंदर शरीक है। उनका ये कहना है कि जमहूरी मुल्क के अंदर, जमहूरियत के अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्लियामेंट की आवाज़ दबा दी गई है और जो ना ब्रेक्जिट के ऊपर बहस हो सकती है ना, बल्कि आजकल ज़ाहिर है कश्मीर का इशू भी इतना ज़बरदस्त इंडिया पाकिस्तान के हवाले से चल रहा है, तो उसके अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होना थी और शुरू में हुई भी, लेकिन अब पार्लियामेंट को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया, जिसकी वजह से आप आज हमने देखा मैनचेस्टर, लीड्स, डंडी, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, इसके अलावा लंदन समेत हर जगह जहाँ जहाँ पर भी ज़ाहिर है सियासी पार्टियों के विंग है, वहाँ पर ही लोगों ने भरपूर एहतजाज किया। और अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन के अंदर तो हज़ारों की तादाद में लोग थे, पूरा लंदन जो है वो जाम हो चुका था, सारा ट्रैफिक का निज़ाम भी धर्म भरम था और लोगों का यही मुतालबा था कि जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरियत का गला दबाना, पार्लियामेंट की आवाज़ दबाना सरासर गलत है और बोरिस जॉनसन को फौरी तौर पर यह फैसला वापस लेना चाहिए ताकि पार्लियामेंटेरियन जो है अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सके। और कुछ थोड़े से मुजाहिरीन ऐसे भी थे जो कि बोरिस जॉनसन के हक में भी मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन इतनी कम तादाद थी ना होने के बराबर, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बोरिस जॉनसन के इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस फैसले को वापस लें। जी। सैयद इफ्तिखार अली काज़मी तीसरी बार मैनचेस्टर शिया वेलफेयर एसोसिएशन अल हुसैन मस्जिद के चेयरमैन मुंतखब हो गए। मैनचेस्टर में शिया वेलफेयर एसोसिएशन अल हुसैन मस्जिद के इंतखाबात हुए। इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ मैनचेस्टर सिटी काउंसिल के साबिक़ कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर नसरुल्लाह मुग़ल ने अदा किए। इलेक्शन सैयद इफ्तिखार अली काज़मी ने जीता और तीसरी बार चेयरमैनशिप हासिल की। सैयद इम्तियाज़ हुसैन काज़मी ख़जानची, जबकि मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहम्मद अब्बास और सैयद बाबर अली एग्जीक्यूटिव मेंबरान मुंतखब हुए। चेयरमैन इफ्तिखार अली काज़मी का कहना था वो नौजवान नस्ल को दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की भी भरपूर कोशिशें करेंगे। मज़ीद खबरें के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के सिलसिले में दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसीज के बाहर अमला और पाकिस्तानी शहरी आधे घंटे के लिए खड़े हुए और कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद की। अमेरिका में इस सिलसिले में लोगों से राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर जहां मुल्क भर में एहतजाज हुआ, वहीं इस एहतजाज का दायरा दुनिया भर में फैल गया। पाकिस्तानियों ने एम्बेसीज और मसाजिद के बाहर आधे घंटे के लिए खड़े होकर कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद की। वाशिंगटन डीसी की पाकिस्तानी एम्बेसी में भी कश्मीर के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सफारती अमले ने पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान की क़यादत में खड़े होकर दुनिया को पैगाम दिया कि कश्मीरी इस वक्त जबर के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत इन पर होने वाले मुजालिम को दुनिया के सामने हमेशा लाती रहेगी। सफीर असद मजीद खान और शुरका का कहना था कि 1 माह होने को है और कश्मीर से कर्फ्यू नहीं उठाया जा रहा। बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे हैं। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को इसका नोटिस लेना चाहिए। उन तमाम जगहों पे लोगों ने यकजुबां होकर, मुत्तहिद होकर अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों ने भी कश्मीर की आवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और फैसला किया है कि उन्होंने मसाजिद के बाहर आधा घंटा खड़े होकर दुनिया को बताया कि मुसलमान पुरअमन कौम हैं, लेकिन इनके साथ कश्मीर में ज्यादती की जा रही है। हम इस चीज़ का इजहार करना चाह रहे हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, पिछले 1 महीने से जो कर्फ्यू लगा हुआ है, उसमें बच्चों को अद्वियात नहीं मिल रही, मरीज़ों को और बच्चों को और लोगों को खाना नहीं मिल रहा। लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं और कश्मीर को उन्होंने लिटरली एक बहुत बड़ी जेल बना दी है। कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं और उसमें यहाँ पे जो भी बर्बादियाँ हो रही है, जो बर्बादी वहाँ पे लगाई हुई है इंडिया ने, और उसके लिए हम यहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो भी कांग्रेसमैन हैं, जो भी लोकल कम्युनिटी है, उनको कश्मीर के बारे में बताया जा सके। हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम ज़रा अवेयरनेस फैलाएं इसके जो कश्मीर में हो रहा है आज कल। वहाँ पे बच्चों के साथ जो है उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, और जो हमारे नौजवान हैं उन बेचारों की स्कूल की भी वो तालीम जो है उनका हर्ज हो रहा है। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट की ये ज़ालमाना पॉलिसी और उनका ज़ालमाना रवैया पूरे कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया है, जहाँ पे मासूम लोगों की इज़्ज़तें, मासूम लोगों को के ऊपर जुल्म हो रहा है। हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हम वॉइस रेज करना चाहते हैं कश्मीर के लिए, जो कश्मीर में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो बच्चे रुल रहे हैं, हम उसके हवाले से हमें दुआएं करनी चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान एम्बेसी में भी उसके हवाले से बहुत काम हो रहा है, बहुत देयर ट्राइंग टू रेज अवेयरनेस, बट हम एज अ लोकल चैप्टर भी हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स और कांग्रेस ने भी कश्मीरियों के खिलाफ मुजालिम पर ट्वीट किए, जिससे बैनुल अक़वामी फोरम पर भारत की पोजीशन कमजोर हुई है। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी पुरुमीद हैं कि कश्मीरियों की आज़ादी की ये कोशिशें रंग लाएंगी। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान पर कौमी और आलमी सतह पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन मनाया गया। जर्मनी शहर फ्रैंकफर्ट में कायम पाकिस्तानी काउंसलेट में तकरीब हुई, जिसमें अदाकार हमायूं सईद ने खुसूसी शिरकत की। जर्मनी से देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया। इसी सिलसिले में फ्रैंकफर्ट में भी पाकिस्तानी कौंसल खाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की कसीर तादाद शरीक हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। रकाबत के फ़राइज़ साजिद रफ़ीक ने अदा किए, जबकि कायम मकाम कौंसलर जनरल शुएब मंसूर ने दूर व नज़दीक से आने वाले मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद भी इस तकरीब में शरीक हुए और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर हाज़रीन से गुफ्तगू की। आपकी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, और वो आई थिंक उसमें ट्वीट करें, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इस तरह के सेशंस करें, एक दूसरे से मिलें, मसले को हल किया जाए, कोई हल निकाला जाए, गवर्नमेंट से मिला जाए, इंडियन गवर्नमेंट से, और उनके मसले को सॉल्व किया। इस मौका पर शुरका ने कश्मीरी आवाम की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने और भारतीय दरिंदगी बेनिकाब करने का अज़्म ज़ाहिर किया। असगर मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर हॉलैंड के शहर दी हेग में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया और तकरीब में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डॉक्टर कामरान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कॉल पर हॉलैंड के शहर दी हेग में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। इस सिलसिले में तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान हाउस में किया गया, जिसमें खवातीन समेत हॉलैंड में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। शुरका ने आज़ादी कश्मीर के हक में और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी भी की। तकरीब से खिताब करते हुए हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर शुजात अली राठौर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, हर वो फोरम जिस पे आप मौजूद हैं, जो कारोबारी फोरम है या कि कोई किसी थिंक टैंक का मेंबर है, जो जहाँ पर भी है, अपने दोस्त अहबाब जो आपके डच दोस्त अहबाब हैं उनको कश्मीर का जो मसला है वो एक्सप्लेन करें। उनको ये बताएं कि ये खबरें जो कि अभी तक कश्मीर में हिंदुस्तानी अफवाज की प्रेजेंस की वजह से बाहर नहीं निकल सक रही हैं, वो कोशिश करें कि ये चीज़ें, ये खबरें हम उन तक पहुँचाएँ। तकरीब के अख्ताम पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग। या अल्लाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से आज के दिन की बरकत से अहले कश्मीर को आज़ादी अता फरमा। कश्मीर कमेटी जद्दा की जानिब से कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मकबूजा आबादी की खुसूसी हैसियत तब्दील किए जाने की शदीद मज़म्मत की गई। उमैर अली अपनी रिपोर्ट के साथ। कश्मीर कमेटी जद्दा का मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए इजलास। कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों की शदीद मज़म्मत की गई। करारदाद में भारत से मुतालबा किया गया कि वो कश्मीर में नाजायज़, मुनज़्ज़म और रियासती सरपरस्ती में इंसानी हकूक़ की पामालियों को फौरी तौर पर बंद कर दे और बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को मकबूजा रियासत तक बिला रोक टोक रसाई की इजाज़त दे। कमेटी ने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया कि वो कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए भारत को राजी करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। कमेटी ने सिविलियन इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग की भी शदीद मजम्मत की। करारदाद में कश्मीरियों की जद्दोजहद के लिए गैर मशरूत सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत पर पाकिस्तान की तारीफ की गई। इजलास में कायम मकाम कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो, सदर जद्दा कश्मीर कमेटी मसूद पुरी, गुलाम नबी भट्ट, आमिल उस्मानी, परवेज यूसुफ मसीह और सरदार इकबाल यूसुफ ने शिरकत की। उमैर अली, 92 न्यूज़, जद्दा। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने में दिल दिल पाकिस्तान के नाम से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वतन अजीज़ से मोहब्बत के गीत गाए गए और कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती किया गया। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक्कद होने वाली दिल दिल पाकिस्तान की तकरीब में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरका ने वतन से मोहब्बत के गीत गाए और अपने कश्मीरी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती भी किया। तकरीब के शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कभी भी कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ सकते। तकरीब से खिताब करते हुए तसद्दुक़ गिलानी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर की जदोजहद आज़ादी में अपने किरदार को दुनिया भर में मौसर बनाना होगा। सलाम पेश करता हूँ कश्मीर के उन लोगों को, उन माओ बहनों और भाइयों को जिन्होंने उस शमा को अपने खून से आज भी रोशन रखा है। कश्मीर की बात करता हूँ तो एक शेर याद आता है, मैं कहता हूँ आपसे ज़रूर शेयर करें। कहते हैं, तूने उजड़ी हुई जन्नत को न देखा हो तो आ, मेरे बिखरे हुए जलते हुए कश्मीर को देख। ब्लैक सनमर प्रोडक्शन के डायरेक्टर बिलाल रशीद और दीगर ने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी हम से हैं और हम कश्मीरियों से हैं, हम एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। तकरीब में उमैर शेख, महमूद अहमद और दीगर ने भी खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान जिंदा दिल कौम है, अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मज़ीद खबरें के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क मलेशिया का आज 62वां यौम आज़ादी इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मलेशिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इंतहाई शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल बताएंगे जावेदुर रहमान। पाकिस्तान मलेशिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन की तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर मलेशिया और पाकिस्तान के कौमी तराने भी बजाए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन थे। इस पुरवकार तकरीब में मलेशिया की मुकामी फैमिलीज, समाजी शख्सियात समेत मलेशिया में मुकीम दीगर दोस्त ममालिक से ताल्लुक़
रखने वाली अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मलेशिया की मारूफ समाजी शख्सियत दातू ताहिर और दीगर मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों पर ढाए जाने वाले अंदोहनाक मुजालिम की तफसीलात बयान की। तकरीब के मेहमान खुसूसी हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से अपने अजीम दोस्त मुल्क मलेशिया की लीडरशिप और अवाम को 62वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। दोनों ममालिक का जो नेशनल डे है, जो इंडिपेंडेंस डे है, इसी महीने में है, तो दोनों की एक तरह से खुशी भी सांझी होगी। लेकिन आज चूँकि फ्राइडे है और ये दिन हमारे मुल्क में यौम यकजहती कश्मीर या कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम से मनाया जा रहा है, तो आज भी हमने इसमें कश्मीर को याद रखा और हमने उसके नाम की इस तकरीब में भी, और उसके लिए 1 मिनट का साइलेंस भी हमने इख्तियार किया। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि आल्दो हम अपनी आज़ादी को, अपनी ख़ुद मुख्तारी को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम यही आज़ादी, यही ख़ुद मुख्तारी और यही जो आज़ादी का जज्बा है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए भी देखना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में आज लोगों ने जमा होकर ऑब्ज़र्व किया, अपनी सॉलिडेरिटी का इजहार किया। पाकिस्तान मलेशिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मलेशिया जिंदाबाद, पाकिस्तान मलेशिया जिंदाबाद। पाकिस्तान, कश्मीर और मलेशिया के मिली नग़मात, तलबा और तालिबात की तरफ से पेश किए जाने वाले टेबलो और क्विज प्रोग्राम तकरीब की रौनक में इजाफा करते रहे। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात और इदारों को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिए गए। मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने, पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी और उनकी आवाज़ बनने पर 92 न्यूज़ जावेदुर रहमान को बेहतरीन सहाफ़ती किरदार के सर्टिफिकेट से नवाजा गया। दुबई में सोशल मीडिया सारिफीन और वीलॉगर्स की हौसला अफजाई के लिए यूथ वीलॉग अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया शख्सियात शरीक हुई। पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को अवार्ड भी दिए गए। सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया जदीद दौर का सबसे पुरअसर हथियार बनकर उभरा है। जो खबर रिवायती मीडिया पर नजर नहीं आती, उसे समाजी रवाबित की वेबसाइट्स पर जारी करने से कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए दुबई में यूथ व्लॉग अवार्ड्स की तकरीब हुई। तकरीब का इनेकाद फिल्म स्टार प्रोड्यूसर ज़ेनोफर फातिमा की जानिब से किया गया। मेहमान खसूसी अमाराती मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस के डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप यासिर अली अलकरकावी थे। तकरीब में अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर और गुलकारा सोनिया मजीद को खसूसी तौर पर शिरकत करने पर अवार्ड से भी नवाजा गया। टिकटॉक क्वीन जुमाना खान और मारूफ व्लॉगर डीजे बिल्स ने भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़ेनोफर फातिमा ने कहा, सोशल मीडिया मुआशरे का अहम हिस्सा बन चुका है, इसलिए उन्होंने इस अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया ताकि नई नस्ल की हौसला अफजाई की जा सके। ऐसा है कि सारे लोगों के घर में ब्लॉगिंग हमेशा होता है, हर लोगों के घर में ब्लॉग है। दे कीप ब्लॉगिंग ऑल द टाइम अबाउट फूड या लाइफस्टाइल या बच्चों का कुछ भी, सो आई थॉट कि इनको ना एक अवार्ड मिला जाए, बिकॉज जो लोग कर रहे हैं इतने मेहनत से कर रहे हैं, देन वी शुड एक्चुअली उनको रिकग्नाइज करके एक अवार्ड फंक्शन हमें बनाना है। तो दैट इज़ द रीज़न आई चोज यूथ व्लॉग अवार्ड्स। मेहमान खसूसी यासिर अली अलकरकावी ने कहा, सोशल मीडिया का इंटरनेशनल मीडिया से बराह रास्त राब्ता है और ये वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। Youth Vlog Awards is a platform for all of the bloggers or all of the people who are interacting with the international media or social media, let me call it. These indicators actually the directions to guide us or guide the youth to produce the best videos, pictures, images and broadcast them in a very positive way. अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर सोनिया मजीद ने कहा, सोशल मीडिया इस वक्त एक बहुत ही मजबूत हथियार बन चुका है। ऐसी तकरीबात सोशल मीडिया सार्फिन को तवानाई फराहम करती हैं। Our duty, all celebrities' duty to be here, and this are vlog awards, so it means that they are appreciating their talent and media, so and they are recognizing their talent as well. So their youth they are using in a correct way to give back something to the society. So I'm really happy. टिकटॉक पर जानी पहचानी शख्सियत जमाना खान, एक नन्हे मेहमान और दीगर का कहना था कि सोशल मीडिया वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया जा सकता है। Definitely feel like anyone who's on social media, उन लोगों को they should have a chance to be out there and be in the public. Keep doing what you're doing. Inshallah you'll reach heights. नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि अभी बेसिकली जो सबसे पावरफुल टूल है हमारी सोसाइटी में वो सोशल मीडिया है। तो बेसिकली ये जो अवार्ड्स हैं ये
यूथ अवार्ड्स हैं और ये सोशल मीडिया पे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको ये पुश फॉरवर्ड करेगा, तो बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट टूल राइट नाउ, तो आई गेस ऐसे अवार्ड जो हैं वो हम जैसे यूथ को और एनर्जाइज करते हैं. Event is beautiful. There's bunch of amazing people, all talented bunch of people. बहुत अच्छे वीडियो बनाओ और प्यार से रहो. तकरीब में ज़नोफर फातिमा की नई आने वाली म्यूजिक वीडियो का ट्रेलर भी दिखाया गया, जबकि मारूफ टिकटॉकर, ब्लॉगर और व्लॉगर्स को अवार्ड से भी नवाजा गया. कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात. इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही. देखते रहिए नाच न्यूज़ यूके.